Yeah, okay, here all of you are there. Yes, dear, we are going to start. All of you are there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Okay, good. So now our next is what we call cargo plan. मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट डू यू मीन और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड जब हम कार्गो प्लान की बात करते हैं. कार्गो प्लान होती क्या है, क्या क्या इसका पर्पस है, क्यों बनाते हैं, व्हाट कम्स टू योर माइंड? एनीबॉडी? Yes, sir. When we are planning load cargo, we are considering safety of cargo, safety of ship, and maximum what amount we can load. Okay. From that, owner can earn more. Right. Yes. Anything else? अभी आपने देखा है लास्ट क्वेश्चन वी डिड कि ओके वी शोड, नाउ वी आस्क्ड कि ओके वी कैलकुलेटेड. नाउ वन इज द कैलकुलेशन that we do the calculation of how much cargo we can store, where we can store, space, weight, everything. And second thing is now, Stability, sir. yeah, okay, those things are there when we are planning. That is our planning stage, that to calculate the stability, weight, trim, draft, everything, that when we start fitting the cargo. Now after all this plan is made, and then we come in the port and we start loading, isn't it? So when we have seen on the stability, all your stresses are okay, ship is all right, comfortable, draft, trim, everything is all right. Space wise also, wherever we can fit this cargo and wherever we can show. Now हमें अब उसको display भी करना है. We have to make it on say piece of paper or whatever. We have a cargo plan. और पूरा शिप को जैसे भी हमने दिखाया कि yes, number these are the 4 holds and number 1 में क्या है, number 2 में क्या है, number 3 में क्या है, number 4 में. Now why? Because when we go to the next port, जहाँ आपने okay you are loading in one port, when you go to next port, the next port has to prepare everything for your ship. So how do they know कि हमारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में कौन सा कार्गो है, कहाँ पे है, कितनी स्पेस अवेलेबल है, isn't it? And then they have to arrange a lot of things, all the what you call the equipment, slings, whether loading or discharging. So these people, we have to inform them. So this is one way of informing, that by sending the cargo plan that the cargo loaded is so and so in so and so place, this much space is available or it is full. And normally what we used to do, the ship like the general cargo ships, they load say in the Europe, 5-6 ports they load, and then they come to India, 5-6 ports they discharge, and that's again how the voyages go. And even on the general, I mean containers also you see. Now container ships पे क्या हो रहा है? All the plan is made from the this thing central planner, then he sends to you, chief officer approves, he checks everything is okay, and then we start loading. So similarly that plan is sent to many people to the next terminal. So he also knows, he looks at the plan and then he plans which all bay I have to discharge the container, which all bay I have to load the containers. So they have to arrange the cargo also like that. So this is the idea of basically cargo plan. So let's look at that how the cargo plan basically looks like. Now if you see this is basically your cargo plan, that you have a ship and it is showing basically in 2-dimensional way, that with color codes, that which all general cargo you have loaded and where, and then the stevedores जिसने भी arrange करना है, so they all arrange the equipment so that when the ship comes there is no delay. And second thing, जब हम इसको बना रहे हैं cargo plan को, जैसे भी आपने देखा now you put cargo of cotton bales in one hold, grain in one hold, so we have to see that cargo is also equally distributed. So what all points we take into account? Roughly we have seen space, load density, that when we are loading cargoes. Now another important part is the port rotation. Now we are loading from 5-6 ports, we are loading for 5-6 ports, and then the last port cargo should be at the bottom, first port cargo should be on top, what we call the port rotation. So
This is the basically way of depicting your cargo plan. What is cargo plan? A ship's cargo plan shows the distribution as well as disposition of all the parcels of cargo on board the vessel. Plan is formulated usually from the workbook. कि अब आपकी प्लानिंग तो होगी थी, आपने उसमें से आप सब अपनी छोटी छोटी डायरी बुक्स पे लिखते हुए दिस कार्गो लोडेड, दिस कार्गो लोडेड. सो प्लान में आप उसको भरते जाते हो कि दिस इज फिनिश्ड, दिस इज फिनिश्ड, and this allows copies of the plan to be made before the vessel sails. तो आपने सारा कार्गो जो लोड कर लिया है फाइनली, this way what we have seen diagrammatically you show to the next port that this is how the ship is loaded, this is where what cargo is there. The copies are forwarded to agents at ports of discharge to allow booking and reservation of labor as appropriate. So those days we have to give it to the agents when there was no net, when there was no technology. So we used to make this plan by hand, color coded, and give one copy or two copies to agent, that one you please send it by post. So next port will receive before the ship arrives. Then they used to arrange everything. Today everything is press click of a mouse, everything goes immediately to the next port. So to facilitate discharge planning, it's essential copy of the plan reaches the discharging ports ahead of the ship, and modern communication technology makes this very easily achievable, isn't it? Now cargo plan should include what it should include: relevant details of cargo, total quantity, description of packages, bales, pallets, tonnage, port wise कितने किस पोर्ट के लिए कितने टन्स हैं. So सारा कुछ. Then only the stevedores will also sit down and then they will do the planning, and then they will tell the ship owner this to discharge this cargo so many days I will take port. Everything has to be told to the arranged to the port. तो ये सारा होता है. Bulk carriers again plans must contain the total tonnage in each commodity loaded in each hatch. Bulk carrier का simple है, जैसे अभी आपने देखा है. What we did, we just showed number 1 hold so many metric tons of grain, that's all. Number 3 so many tons of this. So all the plans for everything is made. Even for container plans are drawn up, delivered by the container terminal, usually under the direction of central planner, and number weight of each container must be recorded. So सारा डिटेल जो है आपकी प्लान में रहता है. And additional information on the cargo plan is normally name of the vessel, master, list of loading ports, discharging ports, sailing drafts क्या थे आपके, टनेज वाइज कौन से होल्ड में कितने टन है. सो ये सारी की सारी चीज़ें उस कार्गो प्लान के ऊपर लिखी होती. तो आपको जब क्वेश्चन आएगा, सो वी विल ऑल्सो ट्राई टू राइट, वी विल ऑल्सो सी दैट व्हाट ऑल वी कैन राइट इन द कार्गो प्लान and how we can distribute the cargo. The plan provides basically at a glance the distribution of cargo and shows possible access to it in the event of fire and cargo shifting. अभी आपको पता ही नहीं है who remembers कि in the hold you have loaded 5-6 types of cargo, अलग अलग पोर्ट से अलग अलग टाइप के हैं. Nobody remembers. So by looking at the plan, the ship's officers, the ship's crew, the shore people, everybody comes to know क्या कौन सी जगह में क्या रखा हुआ है. So most common function is to limit overcarriage and possibility of short delivery. अब आपके हाथ में कार्गो प्लान है as a duty officer, so you know what to discharge and what has been discharged, what is still pending to discharge. ये नहीं है कि भूल गए. जनरल कार्गो शिप आपने देखे नहीं है. You imagine we used to load cargo directly instead of containers. All these packages, boxes, crates, too many things were there. जैसे जैसे उनकी कंपैटिबिलिटी थी तो लोड करते जाते हैं, एंड उसका एक रिकॉर्ड जो है वो भी एक प्लान में बताया जाता है. तो व्हाट आर द पॉइंट्स विच शुड बी टेकन इनटू अकाउंट? कार्गो इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ग्रॉस मास और कार्गो ऑफ कार्गो, कार्गो यूनिट्स, एनी स्पेशल प्रॉपर्टीज डिटेल्ड ऑन बोर्ड और इन शिपिंग डॉक्यूमेंट शुड बी रिकॉर्डेड while and used in planning. Wherever practical, more than one port is involved. For loading and discharging, cargo should be loaded in, we try to load in layers, then in tiers. Lashing, layers में load करते हैं तो lashing will be easier to avoid development of high vertical walls, and care should be taken not to overstow the lighter cargos with heavier cargos. नीचे आपने प्लाईवुड के बॉक्सेस डाले, ऊपर आपने स्टील प्लेट डाल दी तो हो गया काम. तो ये भी आपने ध्यान रखना है व्हेन यू आर मेकिंग. आपको जो क्वेश्चन आता है कार्गो प्लान का, नॉर्मली ही गिव्स यू 3, 4, 5 कार्गोज दे देंगे.
1 और 2 पोर्ट्स दे देंगे। सो आपका तो सिंपल है कि जस्ट 1 और 2 होल्ड्स आपको उसमें वो कार्गो को फिट करना है, देखना है। एंड आपके लिए है कि यस, द हैवियर कार्गो जो है वो नीचे रखेंगे, लाइटर कार्गो आप ऊपर स्टोर करोगे। स्पेस वाइज यू नो हाउ टू कैलकुलेट द स्पेस, tonnage wise also you know how to calculate the tons, how many tons I can fit. And then need some space. Okay, practically of course we need the space also. Walking, the ships are designed today, you see the container ships, even after loading you can go anywhere in the hold, isn't it? आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी है। so that access also should be there। ये नहीं कार्गो लोड कर दिया और पूरा नीचे भर गया, आई कैनॉट, फ्रॉम नीचे जा ही नहीं सकता, आई कैनॉट गो टू लोअर होल्ड। इट हैज हैपेंड विद मी समटाइम। ट्विन डेक है, ट्विन डेक में मैनुअल होता है और द लैडर के लिए एक्सेस होता है, उसको आपने कवर कर दिया, दिस यूज टू बी लाइक अ कवर, वो कवर डाल दिया, ऊपर से कार्गो डाल दिया, नो हाउ टू गो टू द लोअर होल्ड, कैनॉट। तो ये चीज़ें भी होती थी। सो डेक कार्गो शुड बी ऑफ कोर्स स्टोर्ड जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है। वी हैव सीन द डेक कार्गो कि उसमें हमने कैसे उसको लोड करना है, कैसे हम उसको दिखाएंगे, प्लान में भी दिखाना है। सो अल्टीमेटली हमारी जो स्टोरेज का एम है, that is at distributing the cargo for any particular load or discharge port equally in every hold। ये भी नहीं है कि जैसे आपको एक कार्गो मिला स्टील का जी 5000 टन, एक ही होल्ड में चलो 5000 टन स्टील डाल दिया, एंड अदर होल्ड्स उनमें खाली किसी में 50 टन है, किसी में 100 टन है, किसी में 200 टन है। व्हाट विल हैपन? अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी, नो स्टेबिलिटी तो सब चेक कर ली है, बट ऑफ कोर्स लाइक मैंने एक होल्ड में 5000 टन डाल दिया स्टील, और स्टील इज हैवी, और दूसरे में मैंने 100 टन 200 टन, तो क्रैक हो आपका जाएगा जो सर फिर। नेचुरली जिसे कहते हैं आपका जो हैवी हैच है वो एक ही हैच है पूरी। जब पोर्ट स्टे होगा, नेक्स्ट डिस्चार्जिंग को जाओगे तो आपकी एक ही क्रेन एक हफ्ता लगी रहेगी उस कार्गो को डिस्चार्ज करने में। एंड इमेजिन इफ आई डिस्ट्रीब्यूट दैट कार्गो इन 4 होल्ड्स, 1000 1500 1500, नाउ ईच क्रेन हैज टू डिस्चार्ज ओनली 1500। सो ऑल 4 क्रेन्स आपका, दैट इज कॉल्ड द पोर्ट स्पीड। सेम वे अगर आपने कंटेनर्स का देखा होगा, सो वी एज planner does as much it is possible to distribute the containers कि यार 100 कंटेनर्स एक होल्ड में, 100 दूसरे में, 120 तीसरे में। सो 3 गैंट्रीज लगाई एंड इमीडिएटली 6 आवर्स शिप सेल्स। यू डोंट लाइक इट। हमारे टाइम में तो ऑफ कोर्स नो कंटेनर्स, थिंग्स वर स्लो, 10 डेज आराम से शिप इज स्टैंडिंग, चलो सारे घूमने को जा रहे हैं। बट प्लानिंग के टाइम में तो वी कैनॉट से कि यार हमें शिप को वहाँ पे रखना है बिकॉज किनारा जाना है, नो। तो प्लानिंग के टाइम में दिस इज कॉल्ड द पोर्ट स्पीड। द शिप शुड हैव अ, जिसकी कितनी ज़्यादा पोर्ट स्पीड है, कितना फास्ट लोड कर सकता है, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बेसिकली प्लानिंग। ओके, सो दीज आर द बेसिकली थिंग्स विच वी आर। अगेन ब्रोकन स्टोरेज भी हमने देख ली कि ब्रोकन स्टोरेज कहाँ पे हो सकती है। कई बार पिलर्स, ट्रांशंस, ब्रैकेट्स आपके होल्ड में होगा वेयर यू कैनॉट लोड द कार्गो, तो वो चीज़ें उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए जब आप कार्गो प्लान बना रहे हो कि यार ब्रोकन स्टोरेज भी, ब्रोकन स्टोरेज मीन्स ड्यू टू द शेप ऑफ कार्गो और ड्यू टू द शेप ऑफ योर होल्ड ऑल्सो। तो ये सारे पॉइंट्स हम अपने माइंड में रखेंगे। सो लेट्स सी इफ वी हैव टू डू द कार्गो प्लान। सो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, प्रिपेयर अ स्टोरेज प्लान फॉर लोडिंग इन नंबर 2 होल्ड। आपको होल्ड की डायमेंशंस दी हैं एंड ही हैज गिवन यू द कार्गो ऑल्सो। तो इसको लिख लीजिए। तो इसकी हम स्टोरेज प्लान कैसे बनाएंगे। दिस इज ओनली नंबर 2 कार्गो होल्ड, इसकी लोअर होल्ड की कैपेसिटी दी है, ट्विन डेक की कैपेसिटी दी है, एंड पोर्ट रोटेशन आपको दे दी है सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग, एंड दोनों होल्ड्स की, आई मीन लोअर होल्ड एंड ट्विन डेक की डायमेंशंस एंड लोड डेंसिटी भी दी है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन फिट दिस कार्गो।
क्वेश्चन लिख लोगे तो बताना बच्चे। हो गया सर, हो गया। चलो गुड, सबने लिख लिया बच्चे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ यू सी दिस दैट वी विल मेक अ सॉर्ट ऑफ टेबल। पहले हम सारा का सारा एक समरी बनाएंगे कि बेल कैपेसिटी ऑफ ट्विन डेक is given to us 1410 meter cube, load density is given to me so much, bale capacity of the hold 1700 इसकी load density है। Now from these load densities I will calculate how much maximum cargo that can be loaded on twin deck. So how we calculate? Area, length into breadth 15 into 10 into load density 5 ton. So I know I can load on twin deck maximum 750 tons. Similarly, how much maximum cargo I can take or I can load in the lower hold area into the load density of lower hold 1200 metric tons. अब मेरे पास ये फिगर आ गई। सेकेंड आई विल मेक अ टेबल, जो भी आपको कार्गो दिया है कार्गो, उसका स्टोरेज फैक्टर, वेट एंड मीटर क्यूब, हाउ मच स्पेस दिस कार्गो रिक्वायर्स। तो ये मैं कैलकुलेट करूंगा। दैट स्टोरेज फैक्टर इज गिवन, weight is given to me 400, so I can calculate how much space. Example, this iron ore requires 0.5 storage factor at 400 tons. That means weight multiplied by storage factor will give me so many cubic meters, 200 cubic meters required, and this port is की Hong Kong. Similarly, gun is storage factor. तो ये पहले टेबल बनाइए अपनी बुक पे, अपने उस पे लिखिए दैट दिस बिकम्स अ समरी। फिर मेरे पास ये आइडिया आ जाता है कि मैंने हाउ मच कार्गो आई हैव टू लोड 1550, मेरे पास कैपेसिटी कितनी है मैक्सिमम 12 प्लस 750 1950 टन्स आई कैन लोड। सो मेरे को कार्गो ऑफर हुआ है 1550, सो आई कैन वेरी वेल लोड सो मेनी टन्स। स्पेस कितनी चाहिए सारे कार्गो को, वो मैंने टोटल कर लिया 2310 मीटर क्यूब। अब मेरे पास स्पेस कितनी है, बेल कैपेसिटी ऑफ ट्विन डेक 1400 एंड होल्ड की 1700, तो कितना हो गया टोटल 17 प्लस 14 3110, सो 3110 meter cube. So I am within the limit, I have plenty space, so I can definitely fit this cargo. तो एक तो पहले ये टेबल हमेशा अपने समरी बनानी है, what all cargo, which all port, and then we start making the plan. बना लिया, लिख लिया है सर, टेबल बना लिया।
यस सर। लिख रहे हैं सर अभी ये। ओके ओके। आई थिंक लिख लिया सबने, हो गया होगा। सर 2 मिनट। ओके ठीक है, जिसने लिख लिया है अभी आप थोड़ा प्लान बनाना शुरू कीजिए। ओके, कार्गो होल्ड एक शो कीजिए, उसमें लोअर होल्ड, ट्विन डेक एंड हाउ यू विल फिट द कार्गो। आपके पास पोर्ट रोटेशन दी है, सिंगापुर इज फर्स्ट एंड देन हांगकांग, सो सिंगापुर का कार्गो जो है ऊपर होना चाहिए। लिखिए सर। चलो ठीक है, सो आई एम जस्ट अनशेयरिंग दिस एंड इन द मीन टाइम आप अपने सर ये क्वेश्चन में तो 2 TD लिखा था, इसका मतलब सर एक ही ट्विन डेक है ना? yes yes, there is only one hold, number 2 hold only one is there, isn't it? So question मतलब only इसका says मतलब number नंबर 2 2. का ट्विन डेक। Yes, number 2 TD means number 2 twin deck and number 2 LH means lower hold. Okay, now if you can see the board also, at what we are, so basically we can write arbitrarily any ship's name, चाहे आप मुंबई लिखिए MV Inship. So this is the cargo stowage. अब हमने जो कार्गो प्लान के बारे में पढ़ा था कि what is that, कि कार्गो प्लान है, normally we write like this and we even write departure drafts यहाँ पे, and even in your cargo plan arrival drafts, everyone should know जहाज का फॉरवर्ड ऑफ ड्राफ्ट कितना होगा अराइवल पे. सो दिस इज जस्ट टू शो दैट यू आर अवेयर कि कार्गो प्लान में क्या होना है. तो मेरे को नंबर 2 होल्ड दिया है, दिस इज नंबर 2 ट्विन डेक, दिस इज नंबर 2 लोअर होल्ड. सो वी मेक अ प्लान लाइक दिस कि दिस इज नंबर 2 होल्ड. अब इसके अंदर मेरे को कार्गोज फिट करने हैं जो उन्होंने मेरे को ऑफर किए. एंड you can write, of course, here the load port is, so normally we write load ports. तो load ports तो यहाँ पे एक ही है, and disk ports we can write here. इन्होंने कंटेनर शिफ्ट किए, you have the disk port rotation, so disk port rotation is first Singapore and number 2 HKG Hong Kong. and यहाँ की स्पेस लोअर होल्ड, how much maximum, what is the maximum capacity of lower hold? 1200. Yeah, 1700 लोअर होल्ड कैपेसिटी इज. सो आप इसको लिख भी सकते हो, दिस इज 1700 एंड ट्विन डेक इज आई थिंक 1410.
isn't it? So आपके रेफरेंस के लिए कि जब मैं लोड कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि इसमें कितनी स्पेस है और कितनी नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा कार्गो लोड करेंगे ना। एक और चीज है, जब हम कार्गो लोड करते हैं वी नॉर्मली शो, जैसे एग्जांपल मैं कहता हूँ लोड पोर्ट यहाँ पे, चलो हम कोलकाता ले लेते हैं KOL। तो इसकी जो एक जिसे कहते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि अब मैंने अगर शो करना है, सपोज सबसे नीचे में व्हाट वी विल लोड से ओर, isn't it? हमारे पास ओर है 400 टन, तो मैं यहाँ पे नीचे में दिखाता हूँ कि ओके आई विल लोड ओर। अब उसको दिखाना कैसे मैंने, सो फर्स्ट इज द डिस्चार्ज पोर्ट। सो हांगकांग के लिए HKG हांगकांग एक्स कोलकाता, दैट मीन्स ये कार्गो हांगकांग के लिए है एंड कोलकाता में लोड हुआ है। एंड देन वी राइट कि ये कार्गो है क्या, हांगकांग एक्स कलकत्ता और 400 टन्स। एंड अपने रेफरेंस के लिए मैं देख लेता हूँ इसको कितने क्यूबिक चाहिए, 0.5 था, तो 200 मीटर क्यूब ये कार्गो ऑक्यूपाई करेगा। इसके ऊपर क्या लोड करोगे, आयरन ओर के ऊपर, और के ऊपर क्या लोड कर सकते हैं हम सर गनीज हाँ, गनीज कितनी है हमारे पास सर 500 टन। ओके 500 टन है, तो हम इसके ऊपर गनीज लोड करते हैं। ये किस पोर्ट के लिए है, ये भी हांगकांग के लिए, isn't it? हांगकांग एक्स कोलकाता एग्जाम्पल के लिए है, यहाँ पे हम लिख देते हैं गनीज। एंड इसका वेट कितना है गनीज का, 500। यस सर। 500 टन। तो ये गनीज कितनी स्पेस लेगी, आपने टेबल बनाया होगा, तो 850। ओके 850 मीटर क्यूब। अब मैं यहाँ से टोटल भी करता जाता, बाकी आपने टेबल बनाया उसके बाद आपके सामने है कि यार अब मेरे पास 850 प्लस 200, सो 1050 स्पेस चलेगी, मेरे पास 1700 टोटल स्पेस है, यहाँ पे 1410 है। अब नेक्स्ट कार्गो क्या है हांगकांग का, आई थिंक रबर। यस सर, रबर। रबर कितनी है, 100। ओके सो सेम दिस पोर्ट हांगकांग एक्स कोलकाता। नाउ रबर इज बेसिकली रॉ रबर होती है, छोटे छोटे पीसेस होते हैं इन बैग्स। नाउ रबर इज बेसिकली जिससे आपका सारा रबर का स्टफ बनता है, टायर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज अगेन एक्सपोर्टेड, लॉट ऑफ रबर गोज फ्रॉम इंडिया आल्सो, दिस इज बेसिकली इन बैग्स। तो इसके रबर के बैग्स हैं। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यार ओर है, ठीक है, इसको मैंने लोड कर दिया, इसके ऊपर हम डनेज लगाते हैं कुछ भी लगा के, देन वी स्टार्ट लोडिंग द गनीज। एंड गनीज को लेवल करके फिर मैं ऊपर डनेज लगा देता हूँ, प्लाईवुड रख देता हूँ, एंड देन उसके ऊपर ये रबर बैग्स। रबर कितना टन्स था, 100 टन्स। यस। एंड हाउ मच स्पेस दिस विल रिक्वायर, 200 सर। क्या 200 मीटर क्यूब। तो आपने वो टेबल बना लिया, देखो अभी कितना फायदा हो रहा है। अब मैं टोटल अब करता हूँ 850 प्लस 200,000 प्लस 1250। सो अब मेरे पास 1250 की स्पेस जो थी मैंने यूटिलाइज कर दी, ये मेरे पास थोड़ी सी स्पेस अब ये खाली रह गई है। तो मैं अगेन, वैसे तो आपको कार्गो में है नहीं, बट दिस बिकम्स दिस इज अ एम्प्टी स्पेस, आई कैन लोड एनी एक्स्ट्रा कार्गो। अगर मेरे को और भी रबर है, जितनी स्पेस आप कैलकुलेट करके नॉर्मली ऑन द शिप वी टेल, बट यहाँ पे नो नीड। सो वी फिटेड दिस कार्गो हियर। अलग अलग कार्गो है, गनी है, बीच में आपने सेपरेशन भी कर दी, चाहे आप इसको लाइन लगा लीजिए, चाहे आप डॉटेड कि दिस इज अ सेपरेट कार्गो बट फॉर सेम पोर्ट। एंड नेक्स्ट कम्स, अब आपका कौन सा है, सिंगापुर, isn't it? So सिंगापुर के लिए क्या क्या हमारे पास, मशीनरी, गणेश एंड टीचर्स। ओके मशीनरी है, मशीनरी केसेस होंगे, टी चेस्ट होगी और
गनीस गनीज है, Ganesh. isn't it? हाँ, अब आप इमेजिन कीजिए ये ट्विन डेक है। नॉर्मली जो जनरल कार्गो शिप्स की ट्विन डेक्स होती हैं, नॉर्मली दे ओपन हाफ वे सेंटर में से। ये आधे जो कवर्स हैं ये हाइड्रोलिकली पीछे फोल्ड हो जाएंगे एंड आधे कवर ये इस तरफ फोल्ड हो जाते हैं। एंड जब हम इसको बंद करते हैं तो ये पूरे के पूरे दोनों कवर ऐसे आके बंद हो जाएंगे। एंड नाउ दिस इज अ ट्विन डेक जिसकी लोड डेंसिटी भी कम होती है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, हाउ मच मैक्सिमम आई कैन लोड ऑन द ट्विन डेक। वो भी आप सबने कहाँ से कैलकुलेट कर लिया है? फ्रॉम द लोड डेंसिटी, इजंट इट? तो नाउ मेरे पास आ गई गनीज, मशीनरी केसेस एंड टी चेस्ट, इजंट इट? ये तीन चीजें आ गई। अब तो अब मैं इसको कैसे लोड करूंगा? एनी आइडिया? मशीनरी आई थिंक एवरीवन पहले नोज। गनीस है। सर पहले गनीस है क्योंकि उसका स्टोरेज फैक्टर कम है, उसके बाद मशीनरी, उसके बाद टीचर्स। हाँ देखिए, अभी यहाँ पे तो था कि ठीक है आयरन ओर लोड कर लिया, उसके बाद गनीज मैंने यहाँ पे सारी कर दी। अब यहाँ पे भी ऊपर रबर बैग्स थे, सो ये भी एक किस्म का गनीज है, बेल्स हैं। ये गनीज की क्या होती है? बेल्स, इजंट इट? तो ये बेल्स तो ठीक थी, हो गया। अब मेरे पास है टी चेस्ट। टी चेस्ट क्या होती है? डू यू नो व्हाट इज टी चेस्ट? नो सर। हाँ, अभी टी चेस्ट है। अभी देखिए, अभी अगर कार्गो ही नहीं मेरे को पता, अब तो मैंने पहले कहा कि यार फर्स्ट आई विल लुक। सो टी चेस्ट इज सिंपल, लॉट ऑफ टी गोज फ्रॉम इंडिया एंड मैक्सिमम टी गोज फ्रॉम कैलकाटा। टी बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स लॉट ऑफ टी। बहुत अच्छी अच्छी बढ़िया बड़ी चाय जाती है। वो कैसे जाती है? आपके घरों में भी देखिए टी के छोटे छोटे बॉक्सेज आते हैं जिसमें वो डिप डिप वाला भी है या दूसरे टाइप के टी लीव्स भी हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेज में। ये कार्डबोर्ड बॉक्सेज जो हैं, एक छोटी प्लाईवुड बॉक्स, एक प्लाईवुड की पेटी में डाला जाता है। इन सारे बॉक्सेस को एक छोटी आपके पास ऐसे मे बी 1.5 फीट बाय 1.5 फीट या 2 फीट बाय 2 फीट की ये प्लाईवुड की बॉक्सेस हैं। इसे टी चेस्ट कहते हैं। इसके अंदर उसने आपके ये छोटे छोटे जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं वो डाले होते हैं। सो इमेजिन आई हैव कैरिड मैनी टाइम, so these plywood boxes we used to straightway load into the cargo holds। कितना केयरफुली लोड करना पड़ता होगा, ज्यादा किया दबा तो ये प्लाईवुड, पतली प्लाईवुड होती, टूट जाएगा बॉक्स। अब ये सारा कार्गो इज गोइंग इन कंटेनर्स, so all this cargo is nicely packed, no damage, nothing। कंटेनर्स हमने पढ़ा कंटेनर्स में, दिस इज वन ऑफ द बिग एडवांटेज कि यहाँ पे था चोरी भी होगी इन बॉक्सेस को। इमेजिन पतला सा बॉक्स है, क्रेन से अगर आपने 4 बॉक्स उठाए कैसे टूटेंगे? पैलेट पे रखो, कोई गिर गया। सो दिस इज अ वेरी फ्रेगाइल कार्गो, आइडिया इज दिस। अब मशीनरी केसेस भी हैं, तो मेरे माइंड में आता है कि ठीक है मैंने गनीज लोड करने हैं, मशीनरी है, तो ये हमें आइडिया है। गनी बेल्स हैं, बेल्स के ऊपर मशीनरी केसेस, वो भी थोड़े से हो सकता है हिले, तो मैं ऐसे भी लोड कर सकता हूँ। यहाँ पहले पीछे की स्पेस जो है, यहाँ राइट फ्रॉम आफ्ट बल्कहेड वी स्टार्ट लोडिंग द गनीज। और यहाँ पे मैं पोर्ट दे देता हूँ सिंगापुर, एक्स कोलकाता, एंड देन आई राइट, of course we are supposed to write even how many bales of gunnies, but हमें यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया नहीं। normally we write 200 bales gunnies, but यहाँ जो मेरे को दिया how many tons we are loading gunnies Singapore? 400 is it? यस सर। Yeah, 400 tons। and इसको स्पेस कितनी चाहिए होगी? 680। 680 है, ओके, 680 मीटर क्यूब। एंड गनीज हमने यहाँ लोड की, ठीक है, ऊपर तक गनीज के ऊपर गनी मैंने स्टोर कर दी, पूरा ब्लॉक स्टोरेज हो गया, नथिंग टू वरी। अब इसके आगे मैं कहता हूँ कि चलो जी अब मैं यहाँ पे मशीनरी केसेस हैं उनको स्टोर कर देता हूँ। सो दिस इज ऑल्सो अगेन फॉर सिंगापुर, एक्स कोलकाता, एंड आई गिव अ डिस्क्रिप्शन मशीनरी CS केसेस। इनकी क्वांटिटी कितनी है? 70 टन सर। 70 टन। तो इसको कितनी स्पेस चाहिए होगी? 140 मीटर क्यूब। 140। तो अब मैं साथ साथ टोटल भी करता हूँ यार, 680 मैंने रख दिया, 140 ये चला गया, टोटल मेरे पास स्पेस 1400 है। तो ये सारा का सारा जब जीओ सर कैलकुलेट करता है, सो ही कीप्स
a track, a good track, that how much cargo I am loading, how much space is available to me, and how much is the balance, and then accordingly वो next port को बताता है कि भाई this much space I have, and इसको आप प्लानिंग कीजिए, give me this cargo, और whatever next cargo आपने देना है वो हमें देते जाइए. So this is how we are going to load. एंड आपने साथ में हमने ये भी पढ़ा अभी सिक्योरिंग भी साथ साथ देखनी है, नहीं कार्गो लोड कर दिया अरे सिक्योरिंग के टाइम में प्रॉब्लम. तो दिस इज वाई लोडेड कि ओके गनीज यहाँ पे ठीक है, पीछे से शुरू किया आफ बल्केट से वो लोड करता आ जाएगा. देन आई लोडेड द मशीनरी केसेस, मशीनरी और गनी को कुछ नहीं होने वाला. एंड फिर यहाँ पे मैं टी चेस्ट लोड कर देता हूँ. टी चेस्ट को कितना स्पेस चाहिए सर? 80 टन. 240 की 240 मीटर क्यूब. okay, only 240 meter cube. How many tons? 80 टन. 80. How many tons? T chest? 80. 80. So 80 tons of T chest. So मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ कि 680 मेरे पास स्पेस चलेगी. अरे स्पेस है भी कि नहीं. 680 प्लस 140 किया 820. ऐसे बहुत या तो प्लस मेरे को चाहिए 240, तो मैंने यहाँ पे ऐड करके 1060, तो मेरे पास स्पेस बच जाएगी. दैट मीन्स आई हैव टू शो, पूरा नहीं भरूंगा तो मैं ये ऐसे यहाँ बना देता हूँ. दिस इज अगेन एम्प्टी स्पेस, अवेलेबल स्पेस. ये आपकी अवेलेबल स्पेस है. तो यहाँ मैंने लोड कर दिया सिंगापुर एक्स कोलकाता. कार्गो क्या है? टी चेस्ट. कितने टन है? 80 टन्स. हाउ मच स्पेस आई नीड? 240 मीटर क्यूब. तो सर ये जो साइड में स्पेस बच गई रोलिंग में शिफ्ट नहीं हो सकता कार्गो? ये तो कार्गो सिक्योर करना पड़ेगा ना यहाँ पे. अब इमेजिन कीजिए आप ट्विन डेक है, आप यू लुक इनटू द होल्ड. आई थिंक सबने कार्गो होल्ड तो देखे हैं. और इमेजिन यू आर लुकिंग फ्रॉम टॉप, ट्विन डेक पे है, तो ये मैंने बॉक्सेस हैं. टी चेस्ट की क्या बॉक्सेस हैं? प्लाईवुड के बॉक्सेस. इसको आप आराम से लैशिंग ले सकते हो, इजंट इट? वायर लैशिंग, बीच में डनेज रख के यू कैन सिक्योर दिस बॉक्सेस. पूरे के पूरे बॉक्स के ऊपर बॉक्स आ रहा है, आप उसको नाइसली सिक्योर कर सकते हो. मशीनरी भी स्टेबिलिटी में दिक्कत नहीं होगी सर? स्टारबोर्ड साइड में वेट आ रहा है, पोर्ट साइड में नहीं है. ये बच्चे स्टारबोर्ड पोर्ट नहीं, ये पूरा का पूरा पीछे से चल रहा है क्रॉस पोर्ट टू स्टारबोर्ड. फ्रॉम आफ्ट यू आर लोडिंग, बट यू विल शो दिस प्लान इज शोन लाइक दिस. इट इज नॉट कि पोर्ट में ये स्टारबोर्ड में है या ये पोर्ट में है ये. वी आर नॉट लोडिंग पोर्ट एंड स्टारबोर्ड. दैट्स व्हाई साइड व्यू दिखा रहे हैं सर आप. हाँ जी, साइड व्यू दिखा रहे हैं सर आप. हाँ. अगर आप इमेजिन कीजिए आप मेन टैग पे खड़े और होल्ड में नीचे देख रहे हो एंड आपने पीछे से लोड करना शुरू किया. फ्रॉम आफ्ट कार्गो होल्ड के पीछे से आप लोड करते आ रहे हो. तो पीछे से मैंने ट्विन डेक पे लोड किया, यहाँ तक मेरी गनीज आ गई, उनको मैंने सिक्योर कर दिया, 2 वायर लगा दी पोर्ट एंड स्टारबोर्ड बल्कहेड पे. सिमिलरली यहाँ पे आपने मशीनरी है, उसके आगे आपने मशीनरी के केसेस हैं, उसको भी मैंने वायर से सिक्योर कर दिया. वायर्स कहाँ से आई? फ्रॉम पोर्ट बल्कहेड टू स्टारबोर्ड, पीछे से कार्गो लोड. एंड यहाँ पे मैंने टी चेस्ट लगा दी. आप टी चेस्ट को यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, कहीं पे रख सकते हो. बिकॉज एंड सेकेंड थिंग आपने देखना ये इसको कार्गो को खराब तो नहीं करेगा. गनीज मशीनरी केसेस कुछ नहीं होना, मशीनरी केसेस टी चेस्ट कुछ नहीं होना. बट चाय के साथ आपने कोई ऐसा कार्गो नहीं डालना जैसे फिश मील या कोई जो स्मेली कार्गो हो जिसमें स्मेल हो, वो सारी चाय की स्मेल उसमें चली जाएगी, या कोई फूड ग्रेडेबल आइटम है. तो ये चीज आपने देखनी है, प्लस स्टोरेज देखनी है और कंपैटिबिलिटी देखनी है. हमने टीचर्स को सेपरेट रखा है कि हाँ भी इसके ऊपर है नहीं, यही बॉक्सेस हम लोड करेंगे, हो सकता है 2 हाई या 3 हाई, इनफ स्पेस मेरे पास. एंड देन सिक्योरिंग भी साथ साथ आप करते जाओगे. सो दिस इज बेसिकली योर कार्गो प्लान विल लुक लाइक दिस एंड यू विल सी. एंड आपने थोड़ा इसको अच्छी तरह से डेकोरेट, जस्ट आर्बिट्ररी नेम, कार्गो स्टोरेज प्लान, डिपार्चर ड्राफ्ट, अराइवल ड्राफ्ट, लोड पोर्ट, आई मीन डिस्पोर्ट्स एंड लोड पोर्ट्स. And this is basically your cargo plan, isn't it? Now when this plan you send to the next people, next stevedores, मेरे पास अगर if I am staying at Singapore, अगर मेरे को डिस्चार्ज करना, मैं immediately I come to know, okay भाई गनीज है, इसके लिए मेरे को क्या इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी केसेस हैं,
फोकलिफ्ट चाहिए होगी, टी चेस्ट है उसके लिए क्या चाहिए होगा. सो ही इज रेडी विद ऑल हिज गैंग, विद हिज पीपल, विद हिज इक्विपमेंट, एंड वहीं से वो पहले आने से पहले एस्टिमेट दे देगा कि ओके सर आई विल टेक 1 डे और हाफ अ डे और 12 आवर्स शिप विल बी एबल टू फिनिश कार्गो. आपने पूरी इन्फॉर्मेशन उसको दे दी कि हाँ भाई ये भी आपकी अवेलेबल स्पेस है या एम्प्टी स्पेस है, एंड आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो. सिंपल, टोटल में से ये माइनस ही करना है मेरे को. एम्प्टी स्पेस हाउ मेनी मीटर क्यूब, 1700 में से ये माइनस कर दीजिए एम्प्टी स्पेस सो मेनी मीटर क्यूब. यहाँ पे भी अवेलेबल स्पेस सो मेनी, आप चाहे मीटर क्यूब लिखिए या सीबीएम लिखिए, क्यूबिक मीटर. तो एग्जाम में एग्जामिनर नोज कि ओके भाई जिसने कार्गो प्लान बनाई है दिख भी रही है ठीक, कार्गो की कंपैटिबिलिटी हो सकता हो कुछ भी कार्गो उसको शो करने दो. तो आपको कार्गो की नॉर्मली, अदरवाइज जनरल कार्गो शिप्स में क्या होता था, देयर इज अ बुक कॉल्ड थॉमस स्टोवेज, जिसके अंदर सारे कार्गोज की, मोस्ट ऑफ द कार्गोज विच आर ट्रांसपोर्टेड, उनकी डिटेल्स लिखी होती है. जैसे अभी आपको टी चेस्ट नहीं पता था, ऑफ कोर्स आजकल तो थॉमस स्टोवेज की बजाय गूगल गुरु है. यू ओपन द गूगल गुरु, सारा कुछ दिखा देगा, टी चेस्ट क्या होती है, कैसे दिखती है, क्या प्रिकॉशन. सर ये ट्विन डेक पे हमने पैटर्न क्यों चेंज किया कार्गो का स्टोर करने के लिए? अभी आप देखिए ना, आप ट्विन डेक, इमेजिन योरसेल्फ यू आर स्टैंडिंग ऑन द डेक. तो अगर मैंने गनीज लोड करनी है, गनी के ऊपर मशीनरी केसेस लोड करने थोड़े से डिफिकल्ट है. बात तो एक ही है, तो थोड़ा थोड़ा कार्गो है, तो उसको स्ट्रेट वे इस डेक के ऊपर एक केस के ऊपर दूसरा केस लोड करना आसान है, इंस्टेड ऑफ गनीज के ऊपर वो केस सारे हिलते रहेंगे, सिक्योरिंग में प्रॉब्लम. सिमिलरली ये भी बॉक्सेस हैं, टीचर्स और बॉक्सेस, इजंट इट. अब मशीनरी केसेस ऐसे तो है नहीं कि पूरे के पूरे बॉक्स मिलेंगे आपको. मशीनरी केसेस होते हैं कई बार थोड़ी सी ओनली पट्टियां लगी होती हैं उसमें. समटाइम यस, तो फुल केस फुल मशीनरी में भी पूरा का पूरा वुडन बॉक्स है, वो भी आसान सर है. ऐसा भी तो हो सकता है हम मशीनरी स्पेस को अगर ये जो जैसे मशीनरी लोड कर रहे हैं सिर्फ इसी ये हैवी होगी सर, तो इसके ट्विन डेक के नीचे लोड डेंसिटी एक्सीड कर सकती है अगर हम इसको फैला के ना रखें और उसके एक के ऊपर एक स्टैक कर रहे हैं तो. ओके, दैट वी कैन सी. अभी हमारे पास 70 टन है, तो 70 टन आप कर सकते हो. आप ऐसे भी कर सकते हो, मशीनरी उसके ऊपर टीचर्स लोड कर दो, वो भी कर सकते हो. सर लोड डेंसिटी भी देखनी पड़ेगी हम लोगों को. यस, वो आप देख लोगे अप्रोक्सीमेटली कि भाई ये कितने एरिया तक आना है. अभी लोड डेंसिटी देखनी, मैंने 70 टन लोड करना है, ये इतना एरिया में देता हूँ उसको, 4 मीटर 5 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर, कितने एरिया पे स्प्रेड होना चाहिए. आपके पास ब्रेड तो है, हाँ जी सर. इजंट इट, ब्रेड है. सर इस क्वेश्चन के लिए तो इतना देखने की जरूरत नहीं है ना. नो, ये तो वैसे बच्चा जो पूछ रहा है वो प्रैक्टिकली पूछ रहा है कि यस, कि व्हाट ही इज टॉकिंग, कि अगर कल को उसको कार्गो लोड करना है तो डेफिनेटली कैलकुलेट करेगा कि हाँ यार पूरा कंसंट्रेट तो नहीं हो रहा कार्गो, तो मैं उसको स्प्रेड करता हूँ कि अच्छा भी ठीक है, ये मशीनरी केस को यहाँ पे खाली 2 हाई मशीनरी केस आने दो, उसके ऊपर टीचर्स लोड कर दो. कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं. यार गनीज मैंने यहाँ कर, गनीज तो लाइट कार्गो है, इस कार्गो को मैं ऐसे भी लोड कर सकता हूँ, एज लॉन्ग एज, बिकॉज व्हेन यू सी कार्गो तो आपके पास जेटी में पड़ा होगा. नॉर्मली अ गुड चीज वाज सर, आई यूज्ड टू गो ऑन द जेटी फर्स्ट, सी द कार्गो माई सेल्फ, यार कैसा दिख रहा है, आड़ा टेढ़ा कैसा दिख रहा है, एंड देन आई यूज्ड टू मेक अ प्लान. मैं यहाँ पे ऐसे भी लोड कर सकता हूँ कि ओके ये लो मशीनरी केसेस, उसके ऊपर टी चेस्ट, ये भी लोड हो सकता है. चाहे मैं पूरा इधर भी एक्सटेंड कर दीजिए, बट एक भी टी चेस्ट के ऊपर हम कुछ कार्गो नहीं लोड कर सकते, या मैं इस कार्गो को यहाँ पे भी लोड कर सकता हूँ. देयर आर मेनी वेज, एक ही वे नहीं है. अब मेरे को पूछिए तो मैं ये भी करता हूँ, अगर इफ आई हैव टू लोड ऑन द शिप तो मैं इसको ऐसे लोड करूंगा. चलो यहाँ पे लोड कर देता हूँ मशीनरी, ये स्पेस में सेंटर वाली स्पेस जो है खाली रखता हूँ. मशीनरी केसेस, यहाँ पे ऊपर आपकी टी चेस्ट, एंड ये स्पेस खाली है. लास्ट मिनट में यहाँ पे कोई कार्गो आया, ठीक है डाल दो. एंड इसको फॉरवर्ड बल्केट से, सपोज दिस इज द फॉरवर्ड एंड दिस इज द आफ्ट, इनके साथ पूरे मशीनरी केसेस को बल्केट के साथ सटका के आप आफ्ट की तरफ जा रहे हो, फॉरवर्ड से आफ्ट की तरफ, ऊपर टी चेस्ट, फिर
आपको फोकलिफ्ट यूज करनी पड़ेगी। ये जो कार्गो होता है जनरल कार्गो, नॉर्मली फोकलिफ्ट से उठा के ऊपर रखता जाएगा। सर टीचर से सर लोअर होल्ड के एम्प्टी स्पेस में भी तो रख सकते हैं सर। लोअर होल्ड टी चेस्ट को लोअर होल्ड के एम्प्टी स्पेस पे सर। बढ़ते ये देखिए, अभी ये रबर जो है, रबर नॉर्मली इज इन बैग्स। ये रबर के बैग्स हैं, रबर बैग्स। यू कैन इमेजिन छोटे छोटे स्मॉल पीसीज ऑफ रबर। तो ये बैग जो है आपका, जो बेसिकली प्लेटफॉर्म वो इतना वो नहीं होगा, थोड़ा हिलेगा कार्गो, इजंट इट। अब मेरे पास स्पेस है, मैं डाल सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी है कि ये तो आपको उसने क्वेश्चन पे दे दिया, लेट दिस बी एम्प्टी स्पेस। हाँ, अगर मेरे पास और कार्गो था तब मैं उसको डाल सकता। ये तो क्वेश्चन के लिए है, एक्चुअली प्रैक्टिकली तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ से भरूंगा, इसको भरता आऊंगा, यहाँ पे भी मैं देखूंगा यार क्या डाल सकता, तो मैं गनीज डाल देता हूँ। वाई पुट दिस मशीनरी, गनीज इसके ऊपर लोड कर देते सिंगापुर की। ये भी स्पेस खाली रख सकते हैं, और वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्टी स्पेस शो करने की बजाय, इसको वेस्ट करने की बजाय, अब वेस्ट क्या होगा, पोर्ट 2 है। आप कल का कोलकाता से सेल कर रहे हैं, फर्स्ट यू आर गोइंग टू गो टू सिंगापुर। बीच में तो हमने जाने नहीं, कोई और पोर्ट होती कि हाँ भी बीच में दूसरी पोर्ट है। मैं यहाँ पे भी जितनी भी गनीज आती है, मेरे पास स्पेस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंगापुर एक्स कोलकाता गनीज। ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है। तो मैनी वेज ऑफ मेकिंग द प्लान। जितनी यहाँ पे आएगी बाकी की बैलेंस में यहाँ डाल देता हूँ, और एम्प्टी स्पेस मिल जाएगी। वो भी दिखा दीजिए, ठीक है, अंडरस्टूड। बट ये दिखाना है, ये सिंगापुर की है, ये हांगकांग की है। अब जब एक्चुअल कार्गो लोड होगा तो उसकी सिक्योरिंग भी ऐसे अलग अलग होगी। अब ट्विन डेक यहाँ डिस्चार्ज किया, इसको खोला, हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा स्पेस, तो इस तरह से आपने करना है। ऑलराइट, चलो, आई होप सिंपल ना कार्गो प्लान, सिर्फ कार्गो की कंपैटिबिलिटी। तो वो राइट हाँ, कॉर्नर में क्या लिखा है वो दिख नहीं रहा, उधर उधर राइट कॉर्नर में डिस्पोर्ट्स ले लीजिए। अब दिख रहा है? यस दिख गया। हम्म। चलो, ओके, हैव अ लंच। उसके बाद आपकी क्लास है, मेरी भी क्लास है 14:15 नहीं 14:30 या। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, वो जो मैंने आपको पढ़ाया मैं आपको भेज दूंगा नोट्स। आई थिंक कल के भी नहीं आपको भेजे। कल क्या किया था हमने? ना, कल नहीं थी आपके साथ क्लास। या ओके, आई विल सेंड यू दिस, जो मैंने कार्गो प्लान का लिखा हुआ है। ओके, वो डिटेल है, पढ़ के आपको अगेन यू अंडरस्टैंड की कार्गो प्लानिंग, उसमें काफ़ी डिटेल्स मैंने लिखी हुई है कि कार्गो प्लान क्या होती है, क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या पॉइंट्स आपके मन में होने चाहिए। सो देन यू कैन मेक अ बेटर प्लान, एंड देन क्वेश्चंस अगर कोई है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नाउ यू हैव अंडरस्टूड स्पेस एंड कंपैटिबिलिटी। कार्गो जो, अगर किसी का डाउट है then it is difficult for you in the exam to make, but they will normally give you cargo which are very simple to understand. Only he wants to see कि कहीं टी चेस्ट आपने नीचे टी चेस्ट और ऊपर मशीनरी केस डाल दिया, फिर वो आपको मार्क्स काट देंगे। चलो, आई होप एवरीथिंग गुड। Yes, sir, yes. Yeah, चलो, okay, then I am calling it a day. So Thank you, we will sir. meet. Yeah, welcome. Bye, That's sir. it. Tomorrow also we have a class. Tomorrow we'll do the metrology. Okay, metrological instruments. Yeah. Okay, sir. Thank you. Bye. Okay, bye bye. Bye. Yeah.